अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द टेबल टॉक्स ऑन BU TV। मैं हूं आपकी मेज़बान रिफ़ा आसिम। रोज़ जो है हम नई नई गेस्ट लेकर आते हैं ऑन आवर शो फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, और आज की जो गेस्ट हमारी है वो बहुत ख़ास है। वाई? बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ फील्ड जो कि पाकिस्तान कम्युनिटी में अगर देखा जाए स्पेशली तो वो बहुत कम परस्यू किया जाता है। तो हमारी जो आज की गेस्ट है वो एक सेलिब्रिटी शेफ़ है, एक टेलीविज़न होस्ट है, इवेंट होस्ट रह चुकी है, एंड शी इज़ ऑल्सो रोटेरियन। तो आए इनसे मिलते हैं। वेलकम समिया आसिम, कैसी हैं आप? Walaikum assalam. I'm wonderful. Thank you for having me on the show. Lovely to have you, Samia. So I'm just going to ask you a few questions regarding your field, and I want you to answer them as honestly and openly as possible because जो हमारे viewers जो देख रहे हैं, they are very keen to know कि culinary world में enter कैसे होता है, उसकी field क्या है, क्योंकि ये field थोड़ी thrive करना शुरू कर चुकी है अब। तो इसके insights बताना बहुत मतलब I think it's very important, especially क्योंकि हमारी youth देख रही होगी। Absolutely. तो चलिए शुरू करते हैं। Let's start with why did you want to become a chef? What inspired you? What inspired me? Actually, the thing is, to be very honest, my parents and my sister, इन्होंने recommend किया था कि I should pursue being a chef because I had the talent for it. मैंने खुद personally इसको consider नहीं किया था because I was considering a field, a different kind of field. लेकिन इन लोगों ने convince किया था कि I have the talent for it, I should give it a try, और I've always had that creative knack. कुछ ना कुछ creative करना, कुछ ना कुछ अपने हाथों से create करना। तो being an artistic person, I thought it's something worth trying, and when I did try it, so I ended up loving it. तो आप जो कह रही है कि आपके हमेशा से ही रहा है, तो have you been cooking at home या मतलब कहाँ से start किया? मतलब अम्मी को देख के शौक हुआ, अब्बू को देख के शौक हुआ? Exactly, yes. Do you come from a foodie family? What? I come from a very foodie family, लेकिन वो passion जो हल्का सा start हुआ था, the curiosity towards the culinary field, वो start हुई थी of course from my role model, which is my mother. और उनको देखकर वो एक्चुअली बनाती थी, फिर मैंने इंटरेस्ट लिया टेबल डेकोर में। टेबल डेकोर से फिर आई मेड माई वे इनटू द किचन कि भाई आप सिर्फ टेबल को डेकोर करने के बाद फिर आप प्लेट्स को डेकोर करें, फिर आप प्लेट्स में जो आप एलिमेंट्स रख रहे हैं उनको बनाना सीखें। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इन culinary. It's not just food. It's not the food doesn't have to look good. Exactly. It's the plating, the presentation, the table decor, all of these aromas, this makes a meal. So I think this is a very lovely thing you said. तो आप मुझे बता सकती हैं, can you share a memorable experience that solidified your passion for cooking? A memorable experience that solidified. The thing is कि actually, to be very honest, मेरी जो passion for cooking था, it came alive when I went into the practical field. Okay. तो when I started working at a hotel, I started working at Movenpick वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे जब मैंने start किया, वहाँ पे जो एक आपको adrenaline rush मिलता है basically working in a professional kitchen. अगर मैं आपको एक छोटा सा example दूँ, if you can relate, कि अगर आप if you have a shock for playing computer games, और games के अंदर आपको कोई ना कोई you are rush hour होता है, if you're fighting the final boss, या फिर आप culinary cooking games भी खेलें और एक rush hour आ जाता है, you have to टक 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 जल्दी करो। तो that thrill, that adrenaline जो आपको मिलता है, and then you're like आखिर में करने के बाद you're like we did that. That's really fun. अच्छा, तो आपने अभी कहा कि आप Movenpick में काम कर चुकी हैं, यानी कमर्शियल किचन में काम कर चुकी हैं, and right now you're a celebrity chef. मतलब you don't listen to anyone, you don't have a head chef, you are the head chef. So which do you prefer? Like how drastic is the change? It's a huge change क्योंकि वहाँ पे आपके पास everybody has a designated position in a commercial kitchen. एक बंदा is completely designed कि भाई आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ कटिंग करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ सॉसेस बनाने हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ फ्राइंग करनी है। फिर आपके पास फाइनल जो शेफ्स होते हैं वो इनमें से कोई काम नहीं करते हैं, they're finally assembling all the dishes and they're cooking the main aspects. और फिर जो हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ होते हैं, they are cooking वो हार्डली करते हैं, उनका मेन पर्पस होता है to oversee all the operations of the kitchen. फिर जब आप मीडिया में आते हैं तो मीडिया के अंदर पे आपके पास अलग चैलेंजेस होते हैं। आप बहुत लंबी डिशेस नहीं बना सकते जो 2-3 घंटे लगे। यू हैव टू फिक्स, आपको एक सर्टन टाइम के अंदर करना होता है, फिर बीच में ब्रेक्स भी काफ़ी आते हैं, तो यू हैव टू कोऑर्डिनेट एवरीथिंग। फिर आप बातें भी कर रहे होते हैं, फिर आप ब्रांड्स को भी इंडोर्स करते हैं, तो आप उसके हिसाब से डिशेस भी चूज़ करते हैं, आप अपना कुकिंग मेथड भी डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक एड्रेनलिन जो आप जिसकी बात कर रही हैं, इट्स द सेम इन दोनों में ही होता है। दोनों में चले, व्हाट आर दीस एसेंशियल क्वालिटीज दैट यू थिंक हर शेफ या हर बंदा हु वांट्स टू परस्यू दिस फील्ड उसके अंदर होनी चाहिए? पेशेंस,
पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अ फील्ड जिसके अंदर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आपसे बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी बनेंगी, कुछ चीज़ें मैसअप भी होंगी। हैव द पेशेंस टू स्टार्ट ओवर अगेन। दूसरा, यू हैव टू बी क्रिएटिव। एक क्रिएटिव आउटलुक है, क्योंकि एज ऑलवेज चाहे हम लोग टीवी देख रहे हों या फिर हम लोग रेस्टोरेंट में काम कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, वी ऑलवेज ईट विद आवर आइज़ फर्स्ट और फिर हम लोग उसको अपने मुंह से खाते हैं। तो द डिश शुड बी वेरी विजुअली प्लीजिंग। एंड फाइनली अडेप्टेबिलिटी, कि आप डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, डिफरेंट किचन्स के अंदर भी अडाप्ट हो, कि विद योर गिवन रिसोर्सेज, गिवन इंग्रेडिएंट्स के साथ आप कुछ ना कुछ बना सकें। Right. And how do you approach creating new dishes? Matlab, what inspires your culinary creativity? Because you're focusing and emphasizing on creativity so much. So where does that come from for you? सो पर्सनली, क्योंकि मैं वैसे culinary स्कूल आपको ट्रेनिंग तो दी जाती है टू बी अ जैक ऑफ ऑल, आपको हर क्यूजीन के थ्रू गुजारते हैं एंड एवरीथिंग। बट पर्सनली जो मैं मीडिया में भी आई हूँ एंड एवरीथिंग, तो आई हैव नोटिस्ड कि मुझे एक शौक है टू ब्रिंग इन फ्यूजन टू देसी डिशेज़। तो वेस्टर्न के साथ कंबाइन करना या फिर चाइनीज़ के साथ हल्का सा कंबाइन करना। तो जो फ्यूजन्स हैं बेसिकली, दैट इज़ वेयर यू डेवलप कि अच्छा, अगर ये कम्प्लीटली देसी है और ये कम्प्लीटली कुछ वेस्टर्न है, तो आप उसको किस तरह मर्ज कर सकते हैं, कौन से फ्लेवर्स के साथ खेलना भी आपको आना चाहिए। समटाइम्स लिटरली जस्ट ट्राई एनीथिंग, 2-3 चीज़ों को डालने आपको आइडिया होगा कि अच्छा ये चीज़ें, दीज थिंग्स वर्क, दीज थिंग्स डोंट। पीपल से कि भाई पाइनएप्पल एंड पिज़्ज़ा डज नॉट वर्क, बट पाइनएप्पल विद चिकन इज़ अमेजिंग। Right. तो इस टाइप के आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहें, ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड नेवर बी अफ्रेड टू ट्राई समथिंग। कोई चीज़ आपको हो सकता है देखने में अच्छी ना लग रही हो, जो शायद किसी और की क्यूजीन में इट्स वन ऑफ द मोस्ट रनिंग आइटम्स, लेकिन आपको देखने में अजीब सा लग रहा हो, बट फोर्स योरसेल्फ, डू ट्राई इट एटलीस्ट What वंस। is the weirdest food combination you've tried and that you've loved? आई थिंक मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं। Yeah. So what's your बट one? जिसको सबसे ज़्यादा मुझे सुनने को भी मिली थी, दैट वाज फ्रॉम माय मदर एक्चुअली, जब मैंने उनको ट्राई करवाया था। आई टोल्ड हर कि मामा आपको ट्राई करना चाहिए, वनीला आइसक्रीम एंड फ्रेंच फ्राइज इज़ अमेजिंग। It और actually मैंने is. अपने हस्बैंड को भी, Yeah. अपने मदर को भी ट्राई करवाया। उन दोनों ने मुझे इतनी गंदी नज़र में देखा था ना। I've actually tried that and I also love It's it. really good, I है ना? really do love it. I do. एंड वंस जब मैं बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी एंड आई वाज रियली हंग्री एंड यू नो कुछ भी कुछ खाने का मूड था, अब केचप सैंडविच आल्सो वर्क्स। Ketchup sandwich. Ketchup Just sandwich. no other filling other than ketchup. Interesting taste buds you've Interesting. got. अच्छा, so back when you were like in a commercial kitchen, आपने कहा कि everyone's designated. Yes. तो इस तरह कोई job rotation नहीं होती, boring तो नहीं हो जाता, monotonous मतलब life नहीं हो जाती आपकी? As a chef, you're inclined towards creativity, to Right. present in a way. लेकिन तो ये limit नहीं हो जाती? नहीं, बिकॉज आप जो है वो परमानेंटली वहाँ पे फिक्स नहीं होता। जैसे आपको हर जॉब के अंदर प्रमोशन होती है, आप अगर यूनिवर्सिटी में भी हैं, स्कूल में हैं, तो हर साल आपको बेसिकली आपकी उस क्लास से ग्रेजुएट करके आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट इन द किचन, तो आपको बेसिक्स से चीज़ें सिखाई जाती हैं। वंस यू मास्टर दोज बेसिक्स, यू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट स्टेशन। तो वहाँ पे फिर आप बेसिकली अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते करते यू आर टेकिंग ऑन द नेक्स्ट चैलेंजेस। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। एंड ऑफ कोर्स कमर्शियल किचन के अंदर क्यूजीन्स बहुत सारी होती हैं। इफ़ यू चेंज द क्यूजीन, तो यू हैव अ होल डिफरेंट सेट ऑफ लर्निंग। तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तमाम इंग्रेडिएंट्स आपकी चेंज हो जाती हैं, आपकी कुकिंग टेक्निक्स चेंज हो जाते हैं, टाइमिंग्स चेंज हो जाती हैं। अगर आप देसी किचन में काम कर रहे हैं, तो आपकी कुकिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन आपकी सर्विंग टाइम में जल्दी जल्दी चीज़ें निकल जाती हैं। आप चाइनीज़ में कर रहे हैं, तो आपकी फास्ट कुकिंग होती है बहुत तेज़ी से। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं, किस पोजीशन पे हैं। ऑलवेज स्ट्राइव कि आप टू डू योर बेस्ट, एंड वंस यू मास्टर दैट स्किल, एम फॉर द नेक्स्ट। देयर इज़ नो इस फील्ड के अंदर मैं मानती हूँ कि देयर इज़ नो कि भाई आप ये कह नहीं सकते कि भाई आई एम डन विद माई एजुकेशन, आई नो एवरीथिंग। Learning never stops. Learning never stops. That's amazing. So, can you tell me what your favorite ingredient to work with is? Like, do you have a secret ingredient or something? How do you incorporate that ingredient in your dishes? Depend यार, मेरे पास मल्टीपल हैं, डिपेंड कि मैं कौन सी cuisine बना रही हूँ। अच्छा, what's your favorite cuisine to work with? उसमें से बता दें फिर आप। I think एक ingredient है which works with a lot of different cuisines. एक तो आपका cinnamon powder बहुत versatile है, chicken powder extremely versatile और different commercial kitchens में भी इस्तेमाल होता है, and if you know how to use it right, तो soya sauce is also wonderful. Right. And can you tell me a challenging situation in your culinary experience and what you did to overcome it? A challenging experience. Number one, के the very first difficulty that you have is के आप अचानक से you get plunged into a world where you have to stand for long hours, especially in a commercial kitchen. And are you an active person? Depends. Depend what the activity is. Okay.
तो आई लव स्विमिंग वैसे तो यस तो yeah it depends कि अगर आप नंबर वन स्टैंडिंग फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स इन अ कमर्शियल किचन इज़ वेरी टफ लेकिन फॉर एग्जांपल इन मीडिया के अंदर वन ऑफ द चैलेंजिंग थिंग्स ये है कि आपने ब्रांड एंडोर्समेंट्स करनी होती हैं उसके बाद फिर आपके पास हर चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होती राइट समटाइम्स यू हैव ovens and grills and ये सारी चीज़ें जो आपके पास कमर्शियल किचन में लाइन लगी हुई होती है फॉर इक्विपमेंट और नई मीडिया किचन आपके पास जो है उसके अंदर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं लिमिटेड टाइम तो उसके अंदर भी आपने चीज़ें बनानी होती हैं एंड डिफरेंट ब्रेक्स भी आ रहे होते हैं बातें भी हो रही होती हैं एंड इफ़ यू हैव अदर गेस्ट्स इंक्लूडेड विद यू तो फिर आप उनको भी टाइम देना होता है तो यू हैव टू मैनेज ऑल ऑफ दिस तो डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी बिग हैसल जो आपको ओवरकम करना होता है स्टे अपडेटेड विद लाइक फूड ट्रेंड्स फूड जैसे आपने कहा लर्निंग नेवर स्टॉप्स एंड टेस्ट जैसे फैशन में होता है स्टाइल चेंजेस yes फैशन चेंजेस एवरी सिंगल डे तो फॉर culinary can you tell me कि how do you stay updated with these trends Number one, culinary books are also very important. आप अपनी education वहाँ पे there are very good books on the basics of culinary जो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी enhance करते हैं तो keep updated with the books. आजकल social media का दौर है तो फिर आप social media पे चीज़ें देखें कि लोग किस टाइप की चीज़ें बना रहे हैं किस टाइप के fusions बना रहे हैं and I think YouTube की वजह से social media की वजह से you have a lot more exposure to all different kinds of cuisines जो आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स फिर एक्सपेरिमेंटेशन अलोन भी आपको काफ़ी सपोर्ट करता है एंड व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ फूड एंड कल्चर मतलब हाउ डज इट इन्फ्लुएंस योर कुकिंग नंबर वन कि एक तो ये होता है कि इफ़ आई एम मेकिंग इट फॉर लेट्स से टेलीविज़न के तौर पे तो मैं अगर जो भी बना रही हूँ आई फील लाइक कि मुझे मेंशन करना ज़रूरी होता है कि अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं वी लव स्पाइसेस क्या करें तो मिर्च मसालेदार चीज़ें जो है वो हमें पसंद आती हैं तो आप उसको फिर अगर आप हमारी आवाम को अगर बहुत ज़्यादा ब्लैंड बना के दे देंगे जिस तरह कुछ वेस्टर्न क्यूजीन्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैक एंड चीज़ है टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल तो उनकी मैक एंड चीज़ इज़ क्वाइट ब्लैंड कंपेयर टू आवर टेस्ट तो उसको आप थोड़ा सा चटपटा बनाए थोड़ा सा स्पाइसी बनाए उसके अंदर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालें यू नो ऐड इन सम सॉर्ट ऑफ मसाला thing is to just add chili garlic into everything yes chili garlic को भी किस तरह incorporate कर सकते हैं not so that you mess up the taste but in somehow enhance the taste right and how do you prioritize मतलब sustainability in your cooking that's a very good question so number one आपको ये चीज़ें देखनी होती हैं कि आप being a chef आपकी सिर्फ और सिर्फ cooking नहीं देखी जाती how you are using your ingredients कितना आप उनको utilize करते हैं आप कोई ingredient को waste तो नहीं कर रहे हैं this can lead to a better sustainable cooking और साथ ही साथ it's easier on the budget as well अच्छा I've heard there's a particular type of cooking zero waste मतलब उस कोई specific name होता है मेरे slip कर रहा है but it's वही के I saw it on a cooking show के her ideology of her restaurant was के zero waste like अगर कोई भी fish है चीज़ों तो को you use its head its eyes yes. its everything every part of it so that's really great and can you share a memorable or funny kitchen mishap या फिर behind the scenes पे because you are a celebrity chef oh अभी मुझे फौरन एक याद आता है अभी रमज़ान गुजरा था तो आई वाज वर्किंग एट पीटीवी एंड वहाँ पे वी वर हैविंग फन अच्छा हमारे पास रोज़ाना एक नए गेस्ट भी आते थे एक नए मेहमान तो हम लोग उनको भी किचन में बुलाकर उनको उनके साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाते थे नॉर्मली इट वाज आइदर ए डिज़र्ट और ए बेवरेज तो when we were making the beverage तो वहाँ पे ये हुआ कि अच्छा वो थे भी it was Osama Tahir from Osama Eats तो वहाँ पे हमने full on की स्टाइल में वहाँ पे you know we made a lot of बनाने का स्टाइल थोड़ा सा messy था and then once we made it तो मिसहैप ये था कि when my host Ahsan Khan was about to go and present it एक ड्रिंक हमने वहाँ पे रख दी दूसरा हमने ग्लास तैयार रखा हुआ था and he reached out for it तो मैंने कहा कि ठीक है if he's reaching out for it let him do it तो it slipped from his hand and पूरा किस पे आप पे पूरा oh my god the floor our guest और उनकी मैंने तो फिर भी डार्क कपड़े पहने हुए थे बेचारे ने व्हाइट पहना हुआ था व्हाइट के ऊपर जो है ना वहाँ पे रेड कलर टाई डाई हो गया था तो आई वाज लाइक मतलब होता है ना आप व्हाइट कपड़े पहनते हैं इट्स ऑलवेज के हमेशा कुछ ना कुछ गिर जाता है उस पे आई डोंट नो हाउ टू प्रिवेंट इट But it was fun. It was fun. और उसको बल्कि viewers ने भी काफी enjoy किया and PTV ने खुद भी बहुत उसको enjoy किया. I'm sure. And can you tell me since हम आपकी journey पे हैं on television, can you tell us how you made it onto television? Do you have any tips or leads for the newcomers? Oh, that's a very good question. Actually मेरी journey start हुई थी from आज television.
I was invited on a culinary show with Chef Gulzar, Oh, जो okay. आज का तड़का उनका उस टाइम पे That's था. a very good start. या अल्हम्दुलिल्लाह. बट उसके बाद फिर जो है वहाँ पे फिर उसके अराउंड आई थिंक 1 to 2 वीक्स के बाद फिर मुझे हम मसाला ने बुलाया था. Awesome. फिर उसके बाद फिर जो उनके डायरेक्टर्स थे दे हैड अदर culinary projects, फिर मैंने उनके साथ वो टेक अप किया. एंड देन रेफरेंस टू रेफरेंस फिर अब यही आपको मेंशन तो करते रहते आपने हैं. आज पे कैसे पहुंची? Did you have to like person of contact या did they see your page? आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आई भी तो है, थिंक right? कि उस टाइम पे कोई जान पहचान ने रेफर कर दिया था. Right. एंड देन उसके बाद फिर जब पेज डेवलप भी होना शुरू हो गया फिर आपकी एक ऑन स्क्रीन भी आपके पास एक जो आपकी क्लिप्स होती हैं बेसिकली देयर आल्सो अ प्रोफाइल फॉर यू. Exactly. तो आप उसको भी इस्तेमाल करते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स फिर वर्ड ऑफ माउथ चलता है कि अच्छा भाई ये हमारे चैनल पे आई थी, बिकॉज द मीडिया इंडस्ट्री एक लिहाज से इज वेरी कनेक्टेड टू ईच अदर. और ये लोग फॉर एग्जांपल जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो पीसीआर में दूसरे को बैठे होते हैं, बहुत जानते डायरेक्टर्स हैं. बैठे होते हैं, they know each other, they've all worked with each other, and when they're watching television तो they're watching from a different perspective जो compared to the viewers entertainment भी देख रहे होते हैं अपने enjoyment के लिए. ये लोग जो है थोड़ा सा different perspective से देखते हैं. They're also looking at the content, they're also looking at production, they're also looking at potential talents as well कि आपको अच्छा this was good तो फिर हम लोग उनको अपने शो पे बुलाते हैं. and you know जी बिल्कुल. one thing आज leads to another. आजकल सोशल मीडिया इज बूमिंग. आई थिंक everyone's page is their own scrapbook, their own Yes. profile. मतलब LinkedIn It's an e-diary of sorts. exactly. Yeah. LinkedIn से ज़्यादा बेहतर आपको Instagram पेज होता है मेरे ख्याल से. हाँ. तो चले Definitely for this field, yes. yeah. तो can you tell me कि what is your signature dish? That is a good one. So वैसे you're asking for the culinary field में या फिर the baking and patisserie aspect? Oh, अच्छा, तो that's an even better question. अब दोनों में बता दें. So one thing I tried जो पाकिस्तान के अंदर it's hardly known और मैंने इसको टेलीविजन पे भी काफ़ी बनाया है, मैंने इसको अपने friends and family के लिए भी काफ़ी बनाया है. There's a sweet dish called beignets. तो ये इन सिंपल वर्ड जैसे डोनट जो है वो एक फ्राइड डो की तरह होता है, तो ये भी एक फ्राइड डो की तरह होता है which is a little bit hollow inside. Okay. एंड उसके बाद It's like फिर a ऊपर से pillow? यस अ बिट ऑफ अ पिलो टेक्सचर. और उसके बाद फिर आप कैस्टर शुगर जो है आइसिंग शुगर उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं. एंड देन यू हैव दिस white snowy cloud which you just bite into and it's very light, very airy, it's very nice. और मीठा भी मुनासिब है. And for the culinary aspect depends on the cuisine वैसे honestly, मुझे लेकिन लग रही है आप cordon bleu was one of my first बल्कि मैंने cordon bleu को एक competition में भी enter किया था in my Oh, early days. मैंने really? culinary association जो है पाकिस्तान की culinary chefs association, तो जब मैंने उसके लिए हिस्सा लिया था in the competition I took it up with the cordon bleu और alhamdulillah that won me a gold medal. That's awesome. So, last question. What advice would you give to the aspiring chefs watching you right now? Okay, number one, never ever 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 stop believing in yourself. अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे then you can, then the sky's the limit. और उसके बाद फिर always be creative, follow your gut plan कि भाई आपका क्या है, what is your आपका दिल क्या कहता है, do what makes you happy. And culinary की जो field है it's a vast field. हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक रेस्टोरेंट के अंदर कन्फाइन या फिर मीडिया में कन्फाइन नहीं है. There are so many other things. Find what is best for you and stick to it. Thank you, Samia. अभी हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है. We have to go to a commercial break. तो मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद. Keep watching The Table Talk. Welcome back. आप देख रहे हैं The Table Talk on BU TV. मैं हूँ रिफा आसिम and joined with us we have celebrity chef Samia Asim. Welcome back. आए चलते हैं towards our next segment. अभी हमने इतने सारे सवाल पूछे इनसे regarding the culinary world and her journey. तो आए चले, let's take the show towards a little fun aspect and let's play some games. Are you ready? Right, definitely. Okay, so we're going to our rapid fire round, जो कि हम blaze round कहते हैं. तो basically I'm just going to ask you a few questions and you need to answer them as quickly as you can. Okay. Right? Okay. Okay. So starting with the first one. Sweet or savory? Oh dang. Savory. Grilling or braising? Grilling. Butter or olive oil? Olive oil. Fine dining or casual dining? Fine dining. Traditional cuisine or fusion cuisine? Fusion. Spicy or mild? Mild. Homemade or store-bought ingredients? Homemade. Classic recipes or experimental creations? Experimental creations. Knife skills or presentation skills? Both. They're both essential. Choose one. Presentation skills. All right. Breakfast or dinner service? Breakfast. Baking or pastry making? Baking.
Fresh herbs or dried herbs? Fresh. Fresh. So that wraps up our Blaze round, and let's move towards yet another game. We have a series of pictures for you, जो कि आपको उनको guess करना पड़ेगा. तो I'm going to show you a picture and you need to guess it. Okay. And let's see how fast you can guess them. Say? Okay. Say. Perfect. Okay. Picture number 1. So I have to guess what the picture is about. Yeah, it's a food item, and you Okay. need to guess कि what food item it is, या फिर what dish it is, or well, anything. It can be anything. It's Okay. related to food. It's related to food, Yeah, right? yeah. So, picture number 1. Pasta. Penne. Penny pasta. Oh, wow. She described the type too. Awesome. Picture number 2. Is this some fruit or is it an? It could be a fruit. The picture is very zoomed in. There's so many Yeah. different things that can be. That was the point. Can be a nut as well. Okay, let's go with Tick tock, tick tock, tick tock. apricot. Apricot. That is incorrect. This is a piece of bread. Ah, A zoomed in version of a bread. Picture number 3. kiwi. No, that is incorrect. Melon. Cucumber. That is incorrect. You get one final answer, and that is an avocado. Picture number 4 is getting harder. I see. Picture number 4. Kiwi. Why is kiwi your constant answer? Because it's the exact shade of green and it has some seeds as well. क्या है ये? This is olive oil. Incorrect. Once again. I think you need a new printer. I think I think you need to know your ingredients better. I think you need a new printer. Okay. Picture number 5. This is meat. Steak. Okay. अब मैं इसकी rarity भी बताऊँ? Sure. You can. So medium. Wow. Okay. Last picture. Picture number 6. Yeah, you definitely need a new printer. No, we don't. Sushi. Are you sure? Yes. 100%. नहीं लेकिन चलो. That's a very accurate guess for someone who's not sure, but yes. So you've won, I guess, 3 out of 6. You're not keeping tabs. 3 out of 6. Yes, I was keeping track. If not, our editor will. Thank you so much for giving us your time, Samia. We actually are short on time, but thank you so much for joining us and giving us a very wholesome and insightful conversation. We look forward to having you once again in our show. Lekin due to time, we have to come to a close. Thank you so much for watching. मैं हूँ Rifa Asim. Who joined with me was Samia Asim. You are watching The Table Talk on BU TV, and see you next time.